Hi Push, how are you doing? And thanks a lot for giving your time to me today. Thank you for inviting, sir. Okay, Push, this video is going to be very motivating for students, and I can tell you that because I just asked you how many calls you've got, and you do not remember the number. That means you've Yeah, got so many calls, though your score is quite ordinary, I must say. So yes, Push, sir. you are from Rajasthan, and you have graduated from NIT Silchar, Yeah, and you graduated in 2017, and you have a long journey, and yeah, in that you did a very good job also as NIT yeah, graduate, but yeah. you wanted to go for higher education, and today you have so many calls, and Mhm. you have converted also many calls, and today finally Yeah, you decided to get into one course. I think that is a yeah, MTech in computational data science. yeah. IIT Jodhpur. Jodhpur, right? Okay. Yeah. So you have decided that, and then I'm recording your final selection and your wonderful journey here. So Pushp, over to you. We want a very brief introduction from your side. That Mhm. when did you graduate and something about you? You please tell first. So, good afternoon, everyone. My name is Pushpadeep Ramnani. I belong to Bhilwara city of Rajasthan, where I've done my schooling. After that, I went on to do BTech in mechanical engineering with 84% from NIT Silchar. I have 1 year professional experience working for Minda Corporation. I got selections in Vedanta, Shriram Pistons, and multiple other selections are also there. So I decided to pursue higher education. Then I was inclined, misoriented towards engineering service as well. So for some time I was misaligned. Tried to direct my efforts to a certain direction, and today I have so many calls I don't even remember. And I want to thank VRPD for that. Sir, I can't hear you. Yeah, Pushpa, give me your credentials first. Very specifically, you are NIT graduate 2017 mechanical engineer, Yeah, and what is your BTech CGPA you said or percentage? 84% or 8.4 CGPA. Good. And you are from OBC category, and Yeah, your gate score with mechanical is 476. Is this the first time you yeah. wrote gate, or which gate score is this? So 2018 I wrote GATE after passing Okay. out. What? Yeah, Hmm. but I was towards engineering service, so pura theoretical tha wo. And Hmm. 2021, this is second effort on Hmm. 476. Okay. Okay. Yeah, For this is the second attempt 476. अच्छा yeah, 476 जब तुम्हारा गेट स्कोर आया कुछ एनआईटी के ग्रेजुएट भी हो आई मस्ट से आपके yeah. पोटेंशियल के हिसाब से कम था राइट बिल्कुल सर. सो सो क्या क्या लगा था उस टाइम पे कि विल यू बी इन पोजीशन टू get where you are today? I mean, whatever you got today. Yeah, so I want to say multiple things here. Number one being, हर इंसान की तरह उतना ही होपलेस लगा जैसा किसी को भी लगता किसी भी स्कोर पे, Okay. राइट. सो सेकंड थिंग, थोड़ा मेंटली रिफ्लेक्ट किया, प्रिपेयर किया. फिर थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करने के बाद ये स्कोर बहुत पॉजिटिव लगा सर. और वो पॉजिटिव इस पॉइंट्स पे लगा, थिंग्स कुड हैव बीन मच वर्स एट एनी पॉइंट, राइट. मेरा इतना तो आया, कोई एग्जाम पर पहुंच ही नहीं पाया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई सही नहीं है दे पाया. सही है सही है तो अब यहाँ से खोने के लिए तो कुछ है नहीं, तो फिर ट्राई तो करना बनता ही है. तो See, ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है तो बढ़ गए सर आगे. see, one thing I liked in what you just said, and that is the perspective and that is the way to see. जिसको बोलते हैं ना आधा ग्लास खाली देख लो या आधा भरा हुआ देख लो. हाँ, तो आपने अपने स्कोर में बेटरमेंट ढूंढा कि यार स्कोर तो है मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग एंड सिंस योर सीजीपी इज आल्सो गुड सो देयर वाज अपॉर्चुनिटी एंड दैट या इज समथिंग दैट इज अ मैसेज आई वांट टू सेंड टू स्टूडेंट्स कि अगर स्कोर है तो होप है और आप उसको कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करना चाहिए. दैट इज वेरी गुड फ्रॉम योर साइड. अच्छा मेरा दूसरा क्वेश्चन पुश वेरी स्ट्रेट टू यू. You are doing very good job. Just now I was interacting with you. I don't want you declare your packages and all. So that was very good. और अच्छी जॉब थी वेदांता में आपकी. तो उस जॉब को छोड़ के so yeah या you were saying मिंडा, something. मिंडा में सर. या Okay, madam. So that is the job you were doing and that was quite good job. उसको छोड़ के यार गेट का स्कोर भी बहुत अच्छा नहीं आया तो how you were I mean why you left job, why you were thinking of leaving that? जॉब तो अच्छा चल रहा था. हाँ हाँ. तो सर वो हर इंसान जो थोड़ा टाइम जॉब में जाता है, वो एक टाइम के बाद वो स्टैग्नेशन, वो स्थिरता फील करता है. तो हाँ, तो कहीं ना कहीं मन में था कि एकेडमिक रिसर्च में मैं मतलब मैं इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम सॉल्व करता था, वो लाइन ऑफ थॉट अलग था. वो 9 to 5 नहीं था, मैं एक्स्ट्रा टाइम भी वहां लगा रहता था. तो वो इसी कारण कि वो मन था
कि वो चीजों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का। सही है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, तो अब रिसर्च ओरिएंटेड करियर भी इसी डोमेन में बनाने का इंटरेस्ट है। गुड। अच्छा, इसमें पुष्प आपका फाइनली जहाँ पे आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, कॉल्स तो बहुत ज्यादा है तुम्हारे पास, 2 दर्जन से ज्यादा कॉल्स हैं तुम्हारे पास एंड हाँ सिलेक्शन भी बहुत है तुम्हारे पास, लेकिन जहाँ आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो है आईआईटी जोधपुर में एमटेक इन कंप्यूटेशनल डाटा साइंस, और बहुत अच्छी डोमेन है, बहुत अच्छा ब्रांच है। जब मैंने आपका स्कोर देखा तो मेरे को लगा नहीं कि Yeah. स्कोर पे आपको ये मिलना चाहिए, मेरे को लगा नहीं कि इस पे मिल जाएगा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा और जब Definitely. डीप में गया तो मेरे को लगा कि ये सेंट्रली फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसका भी एक कंसेप्ट है इसके अंदर। क्या आप वो शेयर करेंगे कि वो क्या कंसेप्ट है? कुछ नॉट Yeah, एवरीबॉडी yeah. So I वाज want to एलिजिबल फॉर दिस कोर्स, राइट? नॉट एवरीबॉडी वाज एलिजिबल। yeah, so I want to specifically share here कि अगर आप CFTI पास आउट हैं, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, और अगर Okay. आपका 80% से ज्यादा स्कोर है बीटेक में, तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम गेट स्कोर। अच्छा, परफेक्ट। हाँ, दैट इज स्पेसिफिक टू IIT जोधपुर एमटेक ओके इन डिफरेंट ब्रांचेस। या ओके, एनी अदर आईआईटी, एनी अदर कोर्स वेयर ऐसा कुछ है? सर बाकी तो जनरली ऐसा नहीं है, बट हर जगह वो इंटरव्यू प्रोसीजर ही है एमटेक के लिए भी। बट सर जोधपुर में ये मिला तो मैंने प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करनी थी, तो मैं अप्लाई ज्यादा कर रहा था बस। ग्रेट ग्रेट। अच्छा पुष्प, अब मैं चाहता हूं कि आप अपना स्क्रीन शेयर करें हमारे साथ और बताएं कि आपको कहां कहां से कॉल आया था, क्योंकि 2 दर्जन कॉल लेके बैठे हैं आप, तो थोड़ा हाँ सर, शेयर मैं करें और बताएं। हाँ सर, इससे पहले मैं मेरे पास कुछ और सिलेक्शंस थे जिसका मैं ट्रैक रखना भूल गया हूँ अब। यस यस। तो उससे पहले पीएचडी कॉल से मेरे पास रोपड़ बायोमेडिकल, रुड़की बायोटेक, मद्रास बायोटेक, IEOR बॉम्बे पीएचडी, रिलायबिलिटी क्वालिटी खड़गपुर, MS मैनेजमेंट मद्रास, MSc दिल्ली मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, पटना IIT मैकेनिकल PhD, MSc IIT कानपुर MS, देन यू हैव एमटेक रूरल। तो इसके बाद अब मैं शुरू करता हूँ, ये 21 तक ही थे सर। अच्छा, तो ये तो कॉल थी जो आपने लिखी नहीं है और उसके बाद आपने लिखी है, राइट? हाँ, मतलब ये मैं उस टाइम मेरे को आइडिया नहीं था कि इतने कॉल्स आने वाले हैं, तो मैं अलग से ऐप बनाया उसके लिए, उसको ट्रैक किया। अब मैं सिर्फ डे वाइज ही ट्रैक करता हूँ, मैं अगले दिन का सोचता नहीं, क्योंकि ज्यादा है सर। अब मैं शेयर कर देता हूँ। यस। Yeah, so I was saying this is 21st 21/5 IIT कानपुर मैंने जो दिया है उसको मैंने क्रॉस कर दिया है। तो IIT कानपुर डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग, ये टाइम लिखा हुआ है 10 बजे। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, फिर बाद में बताऊंगा। 24 को मद्रास IEOR जोधपुर SME स्कूल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, जो इसमें पूछा गया था जिस डेट में मैंने वो मेंशन करता गया। ओके। सो 2 आर्टिकल्स पर फील्ड रिक्वायर्ड थे जो इस 24 डेट को, और COAP का राउंड था, गुवाहाटी इंटेलिजेंट सिस्टम का नेक्स्ट डे था, और गुवाहाटी रूरल 3 बजे था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, गुवाहाटी एनर्जी था PhD, पॉलीमर हैदराबाद था। सर आप नोट करें तो ये 1-1 घंटे के गैप में, गुवाहाटी रूरल 3 बजे है, 3 से 4 पॉलीमर है, गुवाहाटी एनर्जी 4 से 5 है। तो मेरा हर दिन ऐसे ही चल रहा था। मतलब ये ऊपर चलना थोड़ा, एक बार ऊपर चलना जरा कुछ, मतलब 24th को हाउ मेनी इंटरव्यूज यू वर हैविंग? सर 1 2 3 4 सर 5 इंटरव्यू 24th को थे। हाँ सर, अभी आगे और ज्यादा है सर, आप देखिए 25। इसलिए मैं सर आपको वेट कर रहा था कि आप थोड़ा सा, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इससे। अच्छा, 25 को इंटेलिजेंट फिजिकल सिस्टम PhD, इसके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके देने थे। कानपुर का मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में PhD का कॉल था 11 से 1:15। 26 को एमटेक ई वेस्ट हैदराबाद पटना, जो मैंने टिक कर रखे हैं, पटना PhD केमिकल एंड बायोकेमिकल। 27 3 to 4 मैथ का IIT कानपुर का MCQ था मैकेनिकल का PhD में। देन थर्मल एंड फ्लूइड साइंस का PhD मैकेनिकल IIT कानपुर का, ये रिटर्न एग्जाम था 4:15 से 5:15। IIT पटना PhD मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग 9 से 1 बजे, COAP था इस दिन। 28 को COAP, 29 यू कैन जस्ट रीड बिकॉज बहुत ज्यादा है ना। और इसके बाद 29 को 7 to 8 IIT जोधपुर का MTech प्लस PhD का रिटर्न था। 30 को बायोमेडिकल गुवाहाटी MS था डिजास्टर मैनेजमेंट।
31. Then Jodhpur Decision Science PhD, Hyderabad Polymer PhD, Jodhpur Economics. Then Hyderabad Self-Sponsored, Hyderabad Climate, Kanpur BSB PhD Round 1, M.Tech Material Science, Humanities, Digital Intelligence, M.Tech Material Science. सर ये अभी 3 तारीख ही हुई है, अभी तो मतलब तो ये IIT सारे दिल्ली। के सारे आपके इंटरव्यूज हैं, राइट? हाँ सर, सारे जिसमें इंटरव्यूज लिखा हुआ है वो तो मोस्टली इंटरव्यूज। मेरे ख्याल से पूछ भी तो 50 प्लस हो जाएंगे यार, जो मेरे को हाँ दिख सर, रहा हाँ हाँ आराम से। मतलब ये अगर आप 7 तारीख को नोट करें तो सर मेरे पास इतने इंटरव्यूज थे 7 तारीख को। मद्रास ओशियन, इसका सुबह 8:45 पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हुए, दिन में इंटरव्यू था। दिल्ली मटेरियल साइंस 9:30 था। दिल्ली MSR अप्लाइड मैकेनिक्स 7 जून से 9 जून। दिल्ली KSBS PhD PI, इसके रिजल्ट्स पे बेस था। रुड़की नैनोटेक था। मद्रास ओशियन था। जोधपुर PhD था IoT एंड एप्लीकेशन। और गुवाहाटी MSR था। जोधपुर PhD था IoT एंड IDRP। CCMT का एप्लीकेशन यहाँ से शुरू हो रहा था। 8 तारीख को भी ऐसे था। और अब आप नोट करते जाएं तो ये सारे कॉल्स है। अब मैं छोड़ दिया है सर, अब मैं है। ऐसे ऐसे। अभी आपने वरना इंटरव्यू लगाना बंद कर दिया, राइट? हाँ, ये 18 तारीख से आज 17 है। कार्ट, ये सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव रूरल टेक्नोलॉजी EV का है, PhD दिल्ली। तो अब मैं इतने इंटरव्यूज अब और चल रहे हैं, बट अब पेट भर अभी गया आपका है सर, पेट भर बिल्कुल। गया, गुड। ओके ओके, सो दिस ग्रेट पुष्प। तो ये फिर स्टूडेंट कैसे बोलते हैं कि कोई भी कॉल नहीं आया हमें? हाउ इट इज पॉसिबल देन? हाँ सर, वो अवेयरनेस नहीं सर, सेम मेरा सिचुएशन था। मैं भी अगर किसी से बात करता था एंड पीपल वर लाइक नहीं, 70 प्लस 700 प्लस गेट स्कोर होना चाहिए, डबल डिजिट्स ट्रिपल डिजिट के अंदर रैंक होगा तो कॉल शायद आएगा। अच्छा पुष्प, आपको लगता नहीं कि जो बच्चों का गेट स्कोर 700 से कम है और उनको लगता है कि कॉल नहीं आएगा, वो वेट करते रहते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं, दोबारा तैयारी करते हैं, वो टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा? लगता नहीं आपको? और आईआईटीज की सीट्स वेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी इतने अच्छे, मैं ये देख रहा था बहुत कि कॉज ऑफ आपके कंसर्न। जो कोर्सेज थे वो काफी अच्छे कोर्सेज हैं। इवन मैं आपको बताऊं, आईआईटी हैदराबाद का जो हाँ पॉलीमर है ना, उसमें प्लेसमेंट जबरदस्त है, पॉलीमर में हाँ हाँ, प्लेसमेंट जबरदस्त है। तो ये बिल्कुल जितने आप मेरे को दिखा रहे थे उनमें अच्छी प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं कि सब फॉर्मेलिटी वाले डिपार्टमेंट हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो 100। एक तरफ तो बच्चे को कोर्स नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ कोर्स को बच्चा नहीं मिल रहा है, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, हमारे रिसोर्स वेस्ट नहीं हो रहे हैं? व्हाट यू से अबाउट दैट? 100% राइट सर। और हुआ एक्चुअली ऐसे ही। मेरा जब ये स्कोर आया था तो सबकी तरह मैं भी वैसे डिप्रेस था और मैंने कुछ किया नहीं। मैंने सोचा नहीं होगा, अगली बार फिर एक बार, है ना। एक बार तो दोबारा लिखेंगे, वो 700 नंबर लाएंगे तभी कुछ हाँ, होगा। वही वही आगे अनसर्टेनिटी। पर मैंने देखा अब खोने के लिए कुछ है नहीं, हम्म, तो ट्राई करने में क्या जाता, सही है, वापस पढ़ते रहेंगे ना, कुछ कोशिश करके देखते हैं। सही तो है। फिर मैंने, मेरा अगर आप नोट करें तो मैं बायोकेमिकल पटना तक भी अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मैं होपफुल था, मतलब हम्म, होपलेस था कि हम्म, नहीं होने वाला, इधर से हम्म, भी कॉल आ जाए। तो मैं सबका SOP ऐसे बनाता था कि मेरा यही है, इसमें ही हम्म। सिलेक्शन होगा और मैं इसको ही बनाना है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट आई गॉट वेरेवर आई हैव अप्लाइड, नियरली ऑल कॉल्स आई हैव गॉट, मतलब मोस्टली अच्छा, सब में। अब कुछ क्या है, जब ये आपका वीडियो डलेगा यूट्यूब पे, तो हर तरह के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ मोटिवेट होंगे, कुछ क्रिटिक भी होंगे। क्या जो यार, क्रिटिक डेफिनेटली। होंगे जो क्रिटिक होंगे उनका मैं पॉइंट पहले ही आपको बताता हूँ, मे बी यू कैन गिव मी द आंसर। उनका क्रिटिसिज्म ये होगा कि उसके पास बहुत पैसा था अप्लाई करने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है अप्लाई करने के लिए। व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर दैट? बिकॉज एज अ मेंटर ये क्वेश्चन मेरे से बच्चे बोलते हैं कि सर आप तो बहुत जगह बोल दिए अप्लाई करने को, हम तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका क्या आंसर बेस्ट दिया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? तो उसका सर आंसर यही था, जो मैं भी अप्लाई कर रहा था तो एक एक फॉर्म 500 का है। तो हाँ। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी जनरल स्टूडेंट मिडिल क्लास बैकग्राउंड हम्म, कि वो कर पाएगा। बट इसको आप आगे से देखेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो एक सिलेक्शन, आप आज 1 लाख रुपए देकर क्या आप एक सीट ले सकते हैं? क्या किसी IIT में एक सिलेक्शन ले सकते हैं? उसके लिए कम्पीट है। अगर वो चांस आपको 500 में मिल रहा है आपके घर में, और मैंने सर एक बात आप और नोट करें, ये जो मैंने अप्लाई किया इसको मैंने ध्यान में रख के किया, ये पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक तो नेगेटिव सिचुएशन है, पर पॉजिटिव ऐसे है कि आप अपनी सीट पे बैठ के अपना फोन ऑन करके, एक जगह दिल्ली है और एक जगह बॉम्बे है। मैंने सर एक ही दिन में 10 इंटरव्यू, ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो पेंडेमिक की सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे एडवर्टाइज। यही मिली कि मैं अक्रॉस इंडिया घूम लिया, मतलब सब फैकल्टी से बात कर लिया। और बहुत सारे सर इंस्टेंसेस हैं। गुवाहाटी में मैंने इंटरव्यू दिया, तो
एक कॉमन टीचर है, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कॉमन टीचर है वो जो मल्टीपल डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड है। मैंने एक दिन एक का इंटरव्यू दिया रूरल, 2 दिन बाद एनर्जी का दिया, तीसरे दिन बाद जब मैं वापस बैठा इंटरव्यू में, एक और था कोई डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। मेरे इंट्रोडक्शन देने से पहले उन्होंने मेरा पूरा इंट्रोडक्शन दिया, ये पुष्प है, एक वीक में। ये हाँ, 2 डिपार्टमेंट में ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात, सब डिपार्टमेंट डिजाइन भी अपना अपना प्रेजेंटेशन मांग रहे थे सब अलग अलग। तो व्हाट आई डिड इज, मैंने एक कॉमन प्रेजेंटेशन बनाया। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तो वाइड टॉपिक है, तो इसमें मैंने अपना स्किल टेस्ट किया, एक कॉमन प्रेजेंटेशन बनाया, और वो हर डिपार्टमेंट में, हर आईआईटी में, हर इंटरव्यू में चिपका दिया। एक प्रेजेंटेशन से मैं हर जगह अप्लाई कर रहा था। अच्छा, हाँ, या सो दैट्स वेरी पॉजिटिव। अच्छा, फाइनल सिलेक्शंस कहाँ पे हुई है पुष्प? लेट्स कम टू दैट पॉइंट नाउ। या सो एज ऑफ नाउ आई हैव लाइक 4 सिलेक्शंस हियर। भिलाई में एमटेक है मैकेनिकल में, ओके, जोधपुर में डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस है, देन जोधपुर में मटेरियल साइंस एमटेक है, पीएचडी है कानपुर में डिपार्टमेंट ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग। और अभी सर काफी रिजल्ट्स आए नहीं है, तो अभी एज ऑफ नाउ आई हैव दीज selections. These 4 selections. Today is the 17th of June, and these Yeah. are the elections. So, have you decided so far where to join, Push? Yeah, so far I'm sure like data and computational science is a fine branch linked with data science, so I'm interested in this one. Great, great. अच्छा पुष्प, एक आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जहां जहां से आपको कॉल्स आई है, आप उसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट बना लेना, so that maybe I will share that with students also for their reference. क्योंकि एक्चुअली क्या है कि बच्चों को ना बिलीव नहीं है, बच्चों को ये बिलीव नहीं होता कि कम स्कोर पे कॉल आ सकता है। तो हम लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, और मैं बोलता इसी बेस पे हूँ कि जो एक्सपीरियंस मेरे को आप जैसे लोगों से मिलता है तो मैं बता देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बिलीव नहीं होता, तो हम वही स्प्रेड कर रहे हैं अवेयरनेस, और वही मैं बताना भी चाहता हूँ कि नहीं, हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव होके चलना बहुत जरूरी है। अगर इंटरव्यू से पहले तुम पूछोगे कि मैं इंटरव्यू तभी दूंगा अगर गारंटी हो कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, ऑब्वियसली वो तो कोई गारंटी नहीं होता, राइट? तो आपको तो पहले देना पड़ेगा इंटरव्यू, फॉर्म भरना पड़ेगा। अब फॉर्म भरने से पहले अगर तुम सोच रहे हो कि सर फॉर्म तभी डालें अगर सिलेक्शन हो, नहीं तो 200 रुपए वेस्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर एक्चुअली हमारे पास नहीं है, क्योंकि आप डालोगे पूरी तरह से। जैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सर जब मैं एसओपी लिखता था तो ऐसे लिखता था कि यही डिपार्टमेंट है जो मेरे को मिलेगा, और मैं शानदार एसओपी उसमें लिखता था। तो वो एफर्ट अगर लगाया जाए तो आई थिंक मल्टीपल हमारा कन्वर्शन हो जाएगा। Yeah, definitely. So that is what we will get it. So this is wonderful, Pushp. And any other message you want to give to students? Though your entire journey is quite inspiring, but what message you want to give to them? Yeah, sir. There are a series of points. I would not go in detail, but series of points मैं बताना चाहूँगा। आपका कोई भी सिलेक्शन हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, आप किसी भी पोजीशन में हो, एक बात आप ध्यान रखें कि things could have been worse. चीजें इससे बुरी हो सकती थी, तो आप जिस पे हैं इस पे शुक्रिया करें। Be thankful for all the troubles that you have not faced so far. So this is one thing. And second thing is, sir, एक फेलियर होता है तो पूरा सेल्फ नेगेटिव टॉक, पूरा लोग क्या कहेंगे, इंसान अपने आप में रिफ्लेक्ट करने लग जाता है, सोचने लग जाता है। सो वी आर टेकिंग दिस पर्सनली। फेलियर को पर्सनली लेने की जरूरत तो है नहीं, राइट? एंड अनदर थिंग इज, सर अगर थोड़ा सा फेथ हो, थोड़ा सा, तो इसी दुनिया में कोई अंधा इंसान है, काफी है, उन्होंने एवरेस्ट पे फतेह की है, ये एक इंसान नहीं, दैट इज इम्पोर्टेंट। काफी है सर, काफी। एंड अगर आप सोच के बैठे हैं कि एक आईआईटी के सिलेक्शन से आपकी दुनिया बदल जाएगी, तो लेट मी अश्योर यू, नहीं बदलेगी। एक आईआईटी का टैग सिर्फ एक एफर्ट के लिए एक प्राइज है कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो आईआईटी से ऊपर एमआईटी है, उससे भी ऊपर इंसान है। इफ यू लुक बैक, ये टेस्ला है, फेरेडा है, तो ये लोग ये सिलेक्शंस के लिए वेट नहीं कर रहे थे। एडिसन आईआईटी में नहीं था, राइट? तो ये छोटा सोचना बंद कर दें, अपने लिमिट करना बंद कर दें, नंबर 1। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं फॉर दैट, सो टू फाइट अ टाइगर, लाइक द एग्जाम इज द टाइगर फॉर यू, टू फाइट अ टाइगर यू हैव टू हैव अ काम माइंड, राइट? और वो काम माइंड एक साथ नहीं होगा, एक झटके में नहीं होगा। You learn along the way, you fall, you learn along the way. Another thing regarding interview, इतने interviews देने के बाद I think I am in a position to guide you. One thing I have to make sure, आप कितने भी अच्छे हों,
एजुकेशन में आपका स्कोर 900 आए या 400 आए, अगर आप एक बात नोट करें तो अगर सपोज एग्रीकल्चर है या फार्म इंडस्ट्री है, तो अगर उनके लिए उनको कोई मशीन सेलेक्ट करनी होगी तो वो एरोप्लेन का स्क्रैमजेट इंजन नहीं लगाएंगे, चाहे वो कितना भी सुपीरियर। वो अलाइनमेंट जरूर चेक करेंगे कि इस बच्चे ने इस डायरेक्शन में क्या काम किया है, क्या थोड़ा आइडिया है। वो उस मजदूर को उठा लेंगे पर उस इंजीनियर को रिजेक्ट कर देंगे जो बेस्ट फिट है। तो अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग, आपका स्कोर कोई भी हो, आपको 10 मिनट ही दिए जाएंगे। 900 स्कोर पे आधा घंटा बात नहीं होगी आपसे। तो 10 मिनट में आपको उसकी अटेंशन के साथ खेलना है। अगर आप चेस खेलते हैं तो डिफ्लेक्शन देना है। डिफ्लेक्शन होगा कीवर्ड से, कीवर्ड्स मिलेंगे उसके प्रोफाइल में, उसके प्रोफाइल में उसकी टेरिटरी में घुस के उसको डिफ्लेक्ट करो अपनी तरफ, तो वो अलर्ट होगा, नहीं तो लोग पास होते जाएंगे, राइट। तो दिस इज वन डिफ्लेक्शन। और पढ़ाई के टाइम पे भी देयर इज वन थिंग, ब्रेन फॉग। जितना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, जितनी परफॉर्मेंस आज एक्सपेक्टेड है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तो बैठे रहने से ब्रेन फॉग होता है, मतलब आप अटेंशन एक जगह लंबे समय नहीं रख पाते, वो उस जगह जाता है जिस जगह मजा आ रहा है। ब्रेन हमेशा वो गाना चलने लग जाएगा नहीं। तो आप अपनी जो चीजें हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको रियल लाइफ से जरूर जोड़ें, बिल्कुल कंप्लीट जोड़ें कि ये मेरे को यूज कहाँ हो रहा है। ऑल साइंसेस टू इम्प्रूव योर वर्क, राइट। So these are just some of the things, or curiousness. And the last thing, and the last thing, थोड़ा सा काइंड रहें खुद के साथ। थोड़ा अगर आप गिर जाएं तो इतना घबरा ना जाएं, परेशान ना हो। ये प्रिंसिपल्स, ये जर्नी तुमको सिर्फ गेट का एक सिलेक्शन, एक लेटर, एक एग्जाम निकालना नहीं सिखाएगी। ये लंबी जर्नी है और इसका मैराथन नहीं है, ये एक शॉर्ट रनर नहीं है। तो लंबा टाइम है, आराम से जाएं और मजे ले जर्नी का। हाँ, मुश्किल रहेगा, इजी नहीं है, कहना बहुत आसान है, मैं मानता हूँ, बट कोशिश करते रहे। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट लॉस्ट इट। हाँ, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, आप किसी भी पोजीशन पे फिर भी लग रहा है यार क्या होगा, तो लास्ट थिंग आई वुड से, दिस टू शैल पास। हर उस समय की तरह जो इतना टाइम पास हुआ है, आगे भी होगा। एक लेटर से अपनी जिंदगी को ना तोले। बहुत डिप्रेस हो गए लोग, आई अंडरस्टैंड, मैं भी था, सब होते हैं। गिरने पे इतना, छोटे बच्चे को जरूर देखें, किसी क्लास में जाए आप डिप्रेस हो जाए, एक छोटे स्कूल में जाए बच्चों की जगह, उनको देखें कितनी भी बार गिरते हैं, वो पर्सनलाइज नहीं करते हैं फेलियर। यू आर नॉट योर थॉट्स, राइट। स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम। okay, so this is just tip of the iceberg, I would say, which I shared. That is all, sir. Great push, great. So great learning at the end, and I'm very sure आपने जो सारी बातें बताई, तो they are crux of actually many learnings, many experiences. कुछ फायदा होगा, स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। Let me put it, yeah, sir. Last one thing which I missed, like failing an exam or say 100 exams doesn't make you a fail. Failing an exam doesn't make you a fail. Just remember that, whoever is listening this one, मैंने भी बहुत एग्जाम्स दिए, एक एक सीट होती थी राजस्थान में, आई वुड गिव इट, कम बैक एंड वुड नेवर लुक एट इट, पर रिफ्लेक्ट करते जाएं, सीखते जाएं, बस। चलो, ग्रेट पुश, ग्रेट लर्निंग। नॉर्मली तो बच्चों को लर्निंग होती है, यहाँ मेरी बहुत ज्यादा लर्निंग हुई है। That is really good push, and thanks a lot for your time, and I'm very sure I'll put it on air and many people will get benefited, or I'll share the link with you also. Students will ask many queries from you. Next couple of days, invest on answering their queries. And sure. Thank you, Push. Thank you so much for your time.